قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا۔ السلام علیکم ناظرین، یمار اسلود میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضور نور المشائخ سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری عرف بادشاہ پیران صاحب کے آستانے میں ہم موجود ہیں۔ آج ہم غوث اعظم دستگیر کے مہر مبارک کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ پیر و طریقت سید تاج الدین پیرا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے پوچھیں گے انہی کی زبانی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، جو ہے آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ میرے خانقاہ یعنی میرے پیر مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری نور المشائخ المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے 11 سالانہ عرس کے موقع پر سرکار غوث اعظم کا 911 سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ درگاہ حضرت نور المشائخ بادشاہ پیرا پاڑا تعلقہ ہبلی میں ربیع الاخر کی 7 تاریخ یعنی انگریزی جو ہے 23 اکتوبر کو صبح 11:30 بجے سے لے کر عصر تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی اور سرکار غوث اعظم کا لنگر قادریہ لیام تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے تقریبات کا آغاز ہوگا۔ بعد عصر جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں پرچم کشائی ہوگی، اس میں بھی جو ہے پہلا جو پرچم چڑھایا جائے گا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی پرچم کشائی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا جو پرچم چڑھایا جائے گا، جھنڈا مبارک چڑھایا جائے گا، وہ سرکار میرے پیر و مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری نور المشائخ المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ کا پرچم کشائی ہوگی۔ اور 1 مہینے کے بعد جو ہے جمادی الاول کی 7 تاریخ کو ذکر کی محفل ہوگی، جمادی آخر کی 8 تاریخ کو سنگل ہوگا، جمادی آخر کی 9 تاریخ کو جو ہے عرس کے اور محفل سماع تقاریر کے پروگرام ہوں گے۔ یعنی انگریزی نومبر کی 21، 22، 23 کو یہ 3 دن تقریبات ہوں گے، اور اس کے بعد بھی جو ہے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اگر وہ انتظامات ہو جائیں گے تو اولاد غوث اعظم کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے مشائخین وغیرہ سادات حسنی ہو یا حسینی غوث اعظم کی زیارت میں 11ویں شریف کے لیے بغداد کے دورے پہ ہیں۔ یہ تمام مشائخین کی واپسی کے بعد انشاءاللہ ان مشائخین سے رائے مشورہ کر کے ہو سکے تو اولاد غوث اعظم کی کانفرنس ساؤتھ انڈیا کی اولاد غوث اعظم کانفرنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ریاست کے وزیر جناب چیف منسٹر سدرامیا جی کو اور ہمارے شہر کے ایم ایل اے پرساد ابھیا جی اور انچارج منسٹر وغیرہ دوسرے بھی جو سیاسی قائدین ہیں، اس میں تمام لوگوں کو اس میں جیسے کہ جناب عبدالحکیم بن نذیر صاحب ہیں اور دوسرے احباب ہیں، ان کو بھی مدعو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال بغداد کی واپسی کے بعد تمام مشائخین سے رائے مشورہ کر کے
औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस मेरे पीर व मुर्शद का भी जो है ये 11 सालाना उर्स होने लगा है। इसी की निस्बत से हम लोग जो है औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। अगर इन बुज़ुर्गों की और सियासी कायदीन की अगर तारीख़ मिल जाती है तो इंशाअल्लाह औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस की एक अलग सी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। रहमत और रिदवान के बारे में कि अपनी पूरी हयाती ज़िंदगी जो 83 साल उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसमें कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिला कि पूरी आखिरी सांस तक अपने पीर मुर्शद 5 वक़्त नमाज अदा करते हुए आखिरी इशा की नमाज के बाद जो साहिब पीर मुर्शद का विसाल हुआ है और साहिब का जो सिलसिले नसब जो है गौस आज़म से 21वीं नस्लों से तक मिलता है। और मेरे जद्द करीब जो है बगदाद से केसर मड़ू शरीफ तशरीफ़ लाए और सरकार मेरे जद्द अमजद का भी हाल ही में की सफ़र पुरुष हुआ है और उनके औलादों में जो है तिमनकट्टा तशरीफ़ लाए सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ादरी और सैयद बदरुद्दीन ख़ादरी चाँद फिर वहाँ से मेरे दादा और मेरे वालिद जो है हुबली आकर मुस्तकिल तौर पर यहाँ ख़ामत पजीर हुए। और मेरे वालिदा यानी मेरी दादी सैयदा ज़ैनबी माँ साहबा जो है उर्गुर के जो खुतब ज़मा हैं सैयद शाह हज़रत शाह ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अब्बा सैयद मखदूम हुसैनी की औलाद से होते हैं, क्योंकि हज़रत शाह ख़ादरी की औलाद नगीना नहीं रही, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके बड़े भाई सैयद मखदूम हुसैनी की औलाद से मेरे ननियाल का ख़ानदान है और मेरे वालिद के भी ननियाल का ख़ानदान उर्गुर में सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ादरी की साहिबजादी सैयदा ज़ैनबी जो है मेरी दादी माँ साहबा हैं और मेरी वालिदा सैयदा सैदानी माँ साहबा सैयद ज़ैनुल आबदीन हुसैनी उर्गुर शरीफ के उनकी साहिबजादी हैं और मेरी वालिदा भी उर्गुर की हैं, दादी भी उर्गुर के हैं और परदादी भी जो है उर्गुर के हैं। तो हमारा जो ख़ानदान है नजीबुत तरफ़ैन ख़ानदान है और वालिद हसनी हैं तो मेरी वालिदा हुसैनी हैं, दादा हसनी हैं तो दादी हुसैनी हैं, परदादा हसनी हैं तो परदादी हुसैनी हैं। इसी तरह हमारे ख़ानदान में आज भी सादात कराम का ख़ानदान देखकर ही रिश्ता किया जाता है। ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये हमारे पीर मुर्शद का वसीयत और नसीहत भी है कि हम जहाँ कहीं बच्ची देते हैं तो सादात की तहक़ीक़ करके ही देते हैं। बहरहाल अल्लाह का करम है, अपने गौस व ख्वाजा का करम है, पीरा निज़ाम का करम है कि आज भी जो है हमारे पीर मुर्शद के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए दुआएं खैर करें। तो सादात कराम, मशाइख़ निज़ाम, उलमाए ज़ी एहतराम, अवाम उन्नास, सियासी कायदीन और आशिक़ाने औलिया मुरीदीन मुतवस्सिल से गुजारिश है कि मेरे पीर मुर्शद के उर्स के मौके पर सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 911 सालाना उर्स के मौके पर गौस आज़म का लंगर किया जाता है सुबह 11 बजे से बाद असर तक और उसी वक्त वैसे मौके पर गौस आज़म की मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। फिर बाद असर का मगरिब जो है परचम कुशाई का प्रोग्राम होता है। फिर परचम कुशाई के बाद जो बाद मगरिब नमाज के जो है फिर उसके बाद ज़िक्र की महफिल होती है, हल्का ज़िक्र होता है, फिर उसके बाद भी लंगर आम तकसीम होता है। ये तकरीबात जो है सिर्फ़ रबीउल आखिर की 7 तारीख को यानी पीर के दिन 23 अक्टूबर को जो है सुबह से लेकर इशा तक जो है ये 4 कार्रवाई होती हैं। पहले ज़िक्र अपने गौस आज़म का लंगर होता है, गौस आज़म की मुबारक की ज़ियारत, फिर परचम कुशाई, फिर हल्का ज़िक्र ख़ादरिया होता है, फिर उसके बाद लंगर आम, इशा की नमाज के बाद हमारे प्रोग्राम पूरे मुकम्मल होते हैं। ये एक दिन का प्रोग्राम रहता है। मैं तमाम हुबली, धारवाड़, अतराफ़, अकनाफ़ के तमाम मुरीदीन चाहने वाले जहाँ तक ये चैनल की जानिब से जो मैं जो न्यूज़ में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है मैं इनका भी मशकूर ममनून हूँ और जो है जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, तमाम लोग बिला इत्तेफाक व मज़हब व मिलत आप तमाम लोग इस कार्रवाई में शिरकत फरमा कर ख़ादरिया सिलसिले के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल फरमाएँ। शुक्रिया।